Hello students, how are you? You're welcome in your channel Physics Wall. Today start the NCERT class 12 chapter 11 Dual Nature of Radiation and Matter. The topic is 11.2 Electron Emission. So to start the electron emission, first we ask you where the electron live. You answer that electron live in a atom. But if anyone asks you where the electron live in metal, you answer electron live in a atom. It is not correct, because in a metal case, or we can say in semiconductor, the electron live in atom and also in a metal in free state. So student, it is two different types answer. In metal and semiconductor case, anyone asked where the electron live, you answer that the electron live in atom and also in a metal in free state. And if anyone asks where the electron live, not case of metal semiconductor categorized, then you say that answer the electron live in a atom. So it is two, but from childhood it is not two different ways anyone recognize. So you are in class 12, read better and learn better on physics. Which is make of metal or semiconductor. Semiconductor, you know that the गैलियम सिलिकॉन जिनकी आपको चिप बनी होती है मोबाइल्स में, वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं. जैसे सिलिकॉन होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है, इस टाइप के क्या है सेमीकंडक्टर. मेटल तो आप जानते होंगे फ्री भी हो सकते हैं, सम इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी हो सकते हैं. तो व्हाट यू आंसर फॉर ए मेटल और सेमीकंडक्टर? वी डिस्कस टुडे द इलेक्ट्रॉन इमिशन. तो पता लग गया इलेक्ट्रॉन का पता कहाँ है, या तो एटम में घर में है, या हो सकता है वो मोहल्ले में घूम रहा है, ये जिसको बॉडी को मोहल्ला मान ले पूरा. ठीक, तो इस इलेक्ट्रॉन को यदि ये मोहल्ले को छोड़ के बाहर जाए तो क्या होगा? क्या निकल सकता है? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जैसे निकलेगा कोई दादी बूढ़ी माँ कहेंगी कहाँ जा रहे हो, चलो यहाँ, तो उसको निकलने नहीं देंगे. मतलब कहने का मतलब यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक नेगेटिव चार्ज निकला, तो इस पर पूरे पर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज. तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इस इलेक्ट्रॉन को पुल अप कर लेगा, फिर अपनी तरफ खींच लेगा. चलिए अंदर घुसिए, कहाँ जा रहे हैं? तो वो अपने मोहल्ले को छोड़ के नहीं जा सकता. What is the function of the metal? The minimum certain amount of energy, the certain minimum, certain भी लिख सकते हैं, certain minimum amount of energy required to, किसको required to? इलेक्ट्रॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन लिखेंगे स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन टू कम आउट just from metal, to overcome, or we can say to overcome attractive pull by metal, जो एनसीईआरटी में लिखी है. सो इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी किस में देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देनी पड़ेगी. किस में देनी पड़ेगी? जूल में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे. द एनर्जी, the work function is denoted phi by phi, denoted as phi. कैसे डिनोट करते हैं? phi. So electron volt is the energy acquired by electron in potential 1 volt difference. So
आल्सो प्रॉपर्टी लिखने पाए तो हम क्या लिखेंगे, वर्क फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल. वर्क फंक्शन, स्टूडेंट्स दिस इज वेरी function is a property of metal. Okay, work function also vary to the surface of a metal. ओके, वैरी किस पर कर रहा है, सरफेस ऑफ मेटल पर भी डिपेंड करता है. यदि मान लिया कभी कभार सम वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं ड्यू टू इम्प्योरिटीज ऑफ द मेटल. ओके, सो टू प्रॉपर्टीज वी डिस्कस द इन विच इट मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ students, you know that the minimum certain energy required to come out the electron from the metal is known as work function. Now discuss the electron emission. We discuss the electron emission in three ways. One is thermionic emission, that is heat. So thermionic emission, first is thermionic emission. थर्मियोनिक इमिशन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इफ द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल, इफ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मेटल to certain amount, to certain value, then it acquire the energy, then electron acquire the energy, then free electron acquired the thermal energy and escape from it, thermal energy and escape भाग जाएंगे from metal. This is known as thermionic emission. In case of a bulb, आपने देखा होगा टंगस्टन का बल्ब फिलामेंट लगा होता है बल्ब में, बल्ब जला, टंगस्टन का बल्ब होता है, उसमें क्या होता है, फिर लाइट जब जाती, करंट फ्लो करती है तो थर्मियोनिक इमिशन के कारण इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और वो विजिबल रे, उसमें विजिबल रेंज का स्पेक्ट्रा मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा. सो वो इट इज़ ए थर्मियोनिक इमिशन एंड आपने देखा होगा. दूसरा क्या होता है, फील्ड इमिशन. फील्ड, दूसरा क्या लिख सकते हैं, टू इज अवर फील्ड इमिशन. फील्ड इमिशन, यार बहुत ज़्यादा चिर कर रहे हो. फील्ड इमिशन स्टूडेंट्स क्या है, यदि हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन पर क्या मारेगी, पुल कर देगी और कहेगा निकल जाएगा. तो दिस इज द क्या, इसको फील्ड इमिशन को कोल्ड इमिशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गर्म नहीं हो रहा ना, तो ठंडा इमिशन है, ठंडा कोल्ड इमिशन भी कहते हैं. ठंडा कूल. तो इन सेम when we applied, लिख दीजिएगा, when we applied the high field, that is high potential, then the electron experience a very high force. लिख दे, when the F बराबर QE. so for that force क्या लिखेंगे, for that force electron comes out from the metal. लिख दीजिएगा. अब तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या है, कोई फ्रेंड आ जाए मुझे बुलाने के लिए, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है कि कोई रेडिएशन हम डालते हैं, रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेटल्स पर फॉल करती है
और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देती है और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी पाके घूमने चला जाता है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो जाती है, ये ध्यान रखना, उसके साथ बेचारे को घूमने को नहीं मिलता, वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। समझिए? तो लिख लीजिए, ये ध्यान रखना कि बेचारा दोनों लोग चले गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है? when the certain amount of minimum amount of energy EM waves कहेंगे, क्या कहेंगे? EM waves falls या incident falls on a metal, then it gives to energy, किसको दे देगा एनर्जी? of electron and electron escape, ये बहुत, इलेक्ट्रॉन escape क्या कर जाता है? escape भाग जाता है। तो समझ में आया आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, वर्क फंक्शन एंड द डिफरेंट वेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज खींच मेरी फोटो। थैंक यू।